students, a very good afternoon to all of you. Please confirm, am I audible? Very good afternoon, Kusha. Very good afternoon, Lakshmi. Am I Yes, audible? ma'am. Thank you so much, Budharam, for confirming. Students, we are going to wait just for 2 minutes more and we'll start the session. Let the other students also join the session. Very good afternoon, Kavita. I hope you all are doing great, right? At least say yes or no. Are you doing great? और थोड़ी सी ठंड वंड लग गया आपको? Okay, No, great. ma'am. Fine. Fine. Very nice. Okay, students, let's start the Be session. fine and be Firstly, healthy a very good and eat afternoon to all healthy. of you. I hope you all are doing great. And today we all Okay, are let's here wait for for this 2 more minutes. session of Okay, then Saturday we will Insights start the with the session RM at and 3:70. Margdarshak. So here in this session, we have Vishali ma'am also along with me. And I am Shalja Sharma, your assigned relationship manager. So let's start the session now. So firstly, students, I want to welcome you all to the Nursing Next Live also and to this session also. And let's begin this exciting journey and work together towards shaping your future. As we always say that your success is our motto and we are putting our best efforts to get you selected in the NORCET 8 and 9 or in your desired NORCET. Before starting the session, students, I want to share this motivational quote as usual. That is, the future depends on what you do today. Do you all agree with this quote? Students, please make this session interactive by Yes, just ma'am. unmuting yourself. And because you have the provision to switch on your camera also and to switch on your mic also. Okay, so this is an interactive session. So please unmute yourself and answer the queries. So please let me Yes, know. ma'am. Are you agree with this quote that the future depends on what you do today? Yes, ma'am. Thank you so much for acknowledging Budharam. So students, yes, this is very true. What you are doing today, that will decide your future result. That will decide your NORCET result. So again, a motivation for you कि अगर कहीं पर थोड़ा सा भी lag चल रहा है, please guys gear up now. Now we have very less time for NORCET 8 because जो आप आज कर रहे हो, that will decide your NORCET result. So do enough practice, do enough revision of your live classes and do enough practice of your MCQs. After this, I hope you all are in this Earth Batch WhatsApp channel because we are uploading all the scientific questions for the practice purpose and all the updates on this WhatsApp channel only. So kindly join this session अगर किसी ने भी ये channel अभी तक join नहीं किया है तो. After this is the KYS form, that is know your student form. So students, let me update you. जिसने ये form fill कर दिया है, that is great. But जिसने अभी तक ये form fill नहीं किया है, please fill out this form because your master stroke book जिसका भी pending है अभी तक, I have receiving the queries that ma'am, हमारे पास अभी तक volume 2 भी deliver नहीं हुआ है. This is because students, आपका ये KYS form pending होगा, इसीलिए volume 2 deliver नहीं हुआ है. Please make a note. ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट. मैम ये एक बार ही करना है ना? हाँ जी, बस एक ही बार करना है. डोंट रिपीट दिस. लास्ट टाइम मैंने सेशन में बताया तो सब स्टूडेंट्स ने 3-3 4-4 बार सबमिट कर दिया. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. यू जस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म वंस. मैम फॉर्म तो हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब सबमिट कर दिया था ना. केवाईसी मास्टर स्ट्रोक तो हमें रिसीव हो गया पर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. That I will address this query in your question answer round. Don't worry. वॉल्यूम 2 जिसको रिसीव हो गया है, इसका मतलब उसने केवाईएस फॉर्म फिल कर दिया है. जिसने अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, दिस इज बिकॉज आपका केवाईएस फॉर्म पेंडिंग है. ठीक है, सो आई मैम मास्टर रिक्वेस्ट. स्ट्रोक तो रिसीव हो गया ना हम लोगों को. हाँ, टू डिलीवर हो गया है ना आपको? नो मैम अभी वॉल्यूम वाला नहीं मिला अभी तक. तो आपको कोई मास्टर वॉल्यूम 1 स्ट्रोक और नहीं वॉल्यूम मिला है कविता? नहीं मैम मास्टर स्ट्रोक मिल गया मुझे. जो 2 पार्ट, एक प्री और एक मेंस का, वो तो मिल गया है. वही मैं जो बोल रही हूँ. वॉल्यूम वाला वॉल्यूम सेक्शन 1 and 3 जो है उसका अपडेट मैं आपको दूंगी इसी सेशन में. डोंट वरी अबाउट दैट.
ठीक है। आई एम आस्किंग टू फिल द केवाईएस फॉर्म, जिसने अभी तक एक भी वॉल्यूम रिसीव नहीं हुआ है, वो इसीलिए नहीं हुआ है जिसको केवाईएस फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है जिसने। ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून रितिका। सो लेट्स मूव अहेड for the next update, that is कि आप, I hope you all are aware that your CSAT of anatomy and physiology is live. Are you all aware about this? Yes, ma'am. Great. Yes, तो ma'am. अभी तक is there any student जिसने अभी तक ये CSAT of anatomy and physiology अटेम्प्ट नहीं किया है? देखो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होंगे इस सेशन में जिसने अभी तक ये अटेम्प्ट नहीं किया होगा। अब सो करेंगे प्लीज मैम। स्टूडेंट्स, प्लीज अटेम्प्ट दिस टेस्ट बाय टुडे ईओडी, सो दैट आप लोगों का अगर कोई क्वेरी होगा तो मैं आज इवनिंग तक रिजॉल्व करा दूंगी, बिकॉज टुमारो इज संडे। अगर आपका कोई क्वेरी आप फेस करोगे तो वो अनरिजॉल्व रह जाएगा। प्लीज मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट बाय टुडे। ठीक है। यस मैम। एंड टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट मैंने आप सबके साथ में ये इसका लिंक शेयर किया हुआ है। ठीक है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक and you have to log in through your registered mail ID and your password is your registered mobile number, that जो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। Clear everyone? And this test will be live till Sunday, means tomorrow only. So please attempt this test. This is mandatory for everyone. After this, I hope you all have watched the 100-day strategy वाला वीडियो of Sabina ma'am. जिसने नहीं देखा है, आप सबके साथ में लिंक शेयर्ड है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। प्लीज गो एंड चेक दिस वीडियो, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ऑफ। एंड दिस इज द मेजर अपडेट विच आई वांट टू शेयर विद यू, दैट मैंने आपके साथ में 4 फॉर्म शेयर किए हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज योर कनेक्ट विद योर मार्गदर्शक फॉर्म। ठीक है। मतलब इफ यू वांट एनी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड यू वांट टू कनेक्ट with your margdarshak, that is Miss Vishali ma'am, if you want to connect with her to discuss related to your scientific queries, related to your guidance कि आप लोगों को कैसे schedule करना है, टेस्ट कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, then you have to fill this connect with your margdarshak form. ठीक है। उसके बाद में we will conduct a session for that. Then second form is your CRE survey form. CRE is the common recruitment exam which is launched by AIMS, जिसके बेसिस पे हमारा ये सेशन है। We are going to discuss the same on this in this session only. ठीक है। So उसका we have conducted a survey form. Please fill out this form, students. We really want to know who all are preparing for CRE. Clear everyone? Please make a note, सबको ये form fill करना है। Third is your feedback form of your classes. So please share your feedback regarding your classes. And fourth is your KYS form जिसका pending है. Again I am mentioning जिसका pending है, please fill that. So from here I want to hand over the session to Miss Vishali, who is here with us in this session. Hand over to you, Vishali ma'am. Thank you. So hello everyone, very good evening to all of you. I just hope you all are preparing very well for your NORCET exam. Am I right? सबकी preparation on top है? Yes ma'am. Very good. Very good. So as I can see, many students have already joined the session. So जब भी मैं कोई question पूछूं, I want responses from all of you. ठीक है? Either in the chat box or you guys can come forward and give me the answers. And if you want to ask any query, any question related to any guidance or anything, you can ask me in the end of the session. So today's point of discussion is about CRE exam. You all must have already seen the notification given by AIMS. CRE का exam सबने देख लिया है? Yes, Notification? Yes, ma'am. Yes. तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे that is completely based on our CRE exam only कि किस टाइप का एग्जाम होगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से एम्स के अंदर कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, या फिर हमारे पास क्या नर्सिंग ऑफिसर के अलावा कोई और पोस्ट के लिए भी स्कोप है या नहीं एज पर आर डिग्री एंड टोटल एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आज के सेशन में हम सारी चीजें कवर करेंगे। राइट। सो सबसे पहले तो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स आती है जो बहुत क्रूशियल है। वैकेंसी आई है वी नो, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी लास्ट डेट क्या है, अगर डेट स्किप होगी हमारे हाथ से ये चांस चला जाएगा। आई नो मेनी ऑफ यू आर वेटिंग कि हमारा नॉर्सेट के अंदर ही सिलेक्शन हो जाए, बट ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट
ले सकते हो, ठीक है। और ये नॉर्सेट लेवल का एग्जाम भी नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी बिग गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, जिसको आप अप्लाई करके एग्जाम देके नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। एक और लास्ट फ्यू मंथ्स बैक एक नोटिस आया था कि आने वाले टाइम में हमारी ईएसआईसी की जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होगी वो एम्स में मर्ज हो जाएंगी नॉर्सेट में। इस सीआरई के नोटिफिकेशन से हमारा एक वो डाउट भी क्लियर हुआ है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज दी हैं, कुछ नर्सिंग वैकेंसीज यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ईएसआईसी के लिए भी हैं, ठीक है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमारी ईएसआईसी की भी एग्जाम क्रैक करके हम वहां पे भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर वी कैन वर्क, राइट। सो हियर एज यू कैन सी द लास्ट डेट इज 31 जनवरी 2025। आपके पास अभी टाइम है। 31 जनवरी से पहले पहले मेक श्योर कर ले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपना फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। आपके पास टोटल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है एंड हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, राइट। सो मेक श्योर जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सब आपके अवेलेबल हो, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करो। नाउ last date is 31st January up to 5 p.m. Then the starting date as you can see here is 7 January 2025, जिसमें आपको टोटल एक नोटिफिकेशन मिला है, जिसके आज हम टोटल कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। और जिस इट विल बी डिस्क्लोज्ड जस्ट बिफोर 3 days। जो हमारा एग्जाम होगा सीआरई का उससे 3 दिन पहले ही हमारा एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्किल टेस्ट है, यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं है। सारा एग्जाम हमारा सीबीटी बेस पे होगा सीआरई का, बट साथ में एक स्किल टेस्ट होगा। इफ यू क्वालिफाई दैट सीबीटी, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसकी डेट नोटिफाई की जाएगी बाद में, ठीक है। नाउ डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 26 February to 28 February, विच मीन्स 26 से लेके 28 Feb के बीच में कोई भी एक डेट दे दी जाएगी जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So who all can apply for this CRE exam? CRE एग्जाम को अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए वी नो कि एम्स जब भी हमारा नॉर्सेट का एग्जाम निकालता है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर या तो बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है, और अगर जीएनएम किया है तो वो मिनिमम 1 to 2 years का एक्सपीरियंस मांगता है, राइट। बट इन दिस एग्जाम वी विल हैव अ कंप्लीट ब्रेकआउट इन अपकमिंग स्लाइड्स कि हर एक नर्सिंग ऑफिसर के एक पर्टिकुलर एम्स कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है, कितना एक्सपीरियंस मांग रहा है, ये सबका एक डिफरेंट इस बार आया है सीआरई एग्जाम में, ठीक है। इट इज नॉट लाइक ओवरऑल जैसा एम्स में आता है सब एम्स के लिए सिंगल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स? इट इज 3000 एंड फॉर एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस इट इज 2400, and person with disabilities are completely exempted from this. Now let's move to the another section. So the date of examination is, as I already told you, 26 to 28 के बीच में एक डेट दे दी जाएगी जो आपको एडमिट कार्ड में आएगी, उसी डेट पे आपका एग्जाम होगा। ये एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, डेट दी है कि इससे इसके बीच में डेट हो सकती है, बट एम्स reserves the right to conduct examination in any mode, CBT और written test। साथ में ये नोट भी मेंशन किया है एम्स ने कि अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी वो उसको सीबीटी को कन्वर्ट करके रिटन में भी ले सकते हैं या फिर रिटन को कन्वर्ट करके सीबीटी भी ले सकते हैं, एंड एट एनी अदर टाइम विद 10 days एडवांस नोटिस, ठीक है। 10 days पहले वो एक एडवांस नोटिस देके अपनी डेट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट ऑल्सो। बाद में कोई भी हमारा कमेंट कुछ भी एम्स एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव, सो एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड आई नो एंड मेनी ऑफ यू विल हैव अ वेरी प्रॉब्लम इन लाइक चेकिंग द कन्वेंस, कहाँ पे स्टे करेंगे, सेंटर पता नहीं कहाँ आएगा,
all these things must be in every person's mind. So uske liye AIIMS has given that they will give the city or the state where your exam will be conducted, they will give that state 7 days in advance and वो आपको मेल पे सेंड हो जाएगा, ठीक है. एंड ऑल्सो यू गाइस कैन चेक इट आफ्टर लॉगिन your credentials, after putting credentials on this website aims.ac.in.credentials, ठीक है. इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी credentials fill करेंगे and from that page you guys can check your city or state, and following the same you guys can also download your admit card from the same website, right? Now no admit card will be sent by post. This mark this sentence because this is important. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वेट करते हैं कि चलो हमारा एडमिट कार्ड जो है वो बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू हमारे पास आ जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है. सो हमें अपने आप से इनिशिएटिव लेके खुद से वेबसाइट पे टाइम टू टाइम चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर आर एडमिट कार्ड हैज कम और नॉट, ठीक है. सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर योर स्किल टेस्ट. जो आपका सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड आएगा वो आपके स्किल टेस्ट में यूज नहीं होगा, ठीक है. उस टाइम पे नया एडमिट कार्ड इशू होगा. सो डोंट फॉरगेट दिस आल्सो. स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट फ्यू सिलेक्टेड लोकेशंस. हर जगह पे स्किल टेस्ट नहीं होगा. जो एडमिट कार्ड के अंदर स्टेट आएगी उसी के अंदर जाके आपको स्किल टेस्ट देना होगा. एंड द मोस्ट प्रेफर्ड सिटी दे विल कंडक्ट स्किल टेस्ट इन दिल्ली एनसीआर ओनली. सो यही एरिया आपको मिलेगा, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Thank you. Now these are some important points for CBT. जो हमारा पूरा एग्जाम होने वाला है टोटल 90 मिनट्स का एग्जाम होगा जिसके अंदर 100 MCQs होंगे 400 मार्क्स के. सेम CBT पैटर्न है हमारा, 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जिसमें से 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट और वन क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स. अगर क्वेश्चन रॉन्ग होगा सो यस यहाँ पे भी हमारे नेगेटिव मार्किंग है. नेगेटिव मार्किंग कितनी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है. तो उसके लिए भी वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड. नाउ क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट्स जस्ट लाइक योर नॉर्सेट एग्जाम, ठीक है, वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन. फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल. जैसा नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन पेपर आता है आपका बिल्कुल एज इट इज 5 सेक्शंस के अंदर ये पेपर आएगा, ठीक है, और सेम ड्यूरेशन रहेगी और सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है. एक सेक्शन को जब आप अटेम्प्ट करोगे 1 सेक्शन यू कैन अटेम्प्ट एट 1 टाइम ओनली. आप दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते हो, ठीक है. जो सेक्शन चल रहा है उसी सेक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जब तक आपका वो टाइम ओवर नहीं होता और आपका एक सिंगल सेक्शन जो अभी करंटली रनिंग है जब तक वो सबमिट नहीं होता, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. Each question will carry 4 marks and there will be negative marking of 1/4 marks for each wrong answer, and the qualifying marks will be 40% for UR and EWS category, 35% for OBCs and 30% for SC and ST. So हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है. हमारा टारगेट सीधा 90 तक होना चाहिए, ठीक है. ओनली देन वी कैन गेट अ गुड रैंक एंड गुड स्कोर इन आवर एग्जाम, राइट. सो अब बात करते हैं डिटेल में कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, सो दैट यू गाइस कैन गेट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है. सबसे पहले जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, जिसके अंदर बीएससी डिग्री के साथ में बीएससी नर्सिंग डिग्री के साथ में यू शुड हैव एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीजेस. यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन लोगों का एक्सपीरियंस है इस बैकग्राउंड से, जिन्होंने भी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस लिया है कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर, ठीक है. इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है ESIC की जिसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है 1 ईयर का इफ यू हैव डन GNM, या फिर अगर आपने BSc या पोस्ट BSc की है यू गाइस कैन अप्लाई डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. Done. Now the third post is again for nursing officer. It is for Regional Institute of Medical Sciences Imphal. यहाँ पे BSc या post BSc होनी चाहिए without any experience, but अगर GNM है तो again 2 years का experience minimum यहाँ पे required है. Then after this we have public health nurse की post.
कहाँ की है ये है एम्स ऋषिकेश की, जहाँ पे यू शुड हैव बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम recognized institute, and you should have 2 years of experience, relevant experience. ठीक है, relevant experience means the experience you have gained should be from minimum 50 bedded hospitals. मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 years का या मोर देन 2 years का, यू कैन अप्लाई फॉर दिस. ओके, देन नेक्स्ट इज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एम्स जम्मू, रायबरेली, बठिंडा, नागपुर, पटना, रायपुर. यहाँ पे सब में आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू हैव BSc. Yes, dear, let me complete till 6. After that, I'll repeat all in brief. Okay, so here in all these states, you should have BSc nursing honors from a recognized institute, and you should also have minimum 3 years of experience, right? क्योंकि यहाँ पे पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर नहीं, सीनियर नर्सिंग पोस्ट हो जाती है. ठीक है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, सो अगेन यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे 3 years का एक्सपीरियंस यू शुड हैव. उसके बाद आता है हमारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना और एम्स रायपुर. यहाँ पे भी सेम है, एक्सपीरियंस मांगा है, बट यहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा बाकी स्टेट से कम है, दैट इज फॉर 2 years. ठीक है, सो यहाँ पे भी यू गाइस कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली. अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ही फॉर्म भरना है, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा या कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर कर लेना अपना क्राइटेरिया completely कि you should have all the documents अपने criteria के according, only then please fill the form. Yes dear, you can fill 2 post also, but दोनों separate होनी चाहिए. ठीक है, अलग अलग वे में उसको अप्लाई करना, लॉग इन करके अलग क्रेडेंशियल्स आपके बनेंगे. ठीक है, yes, so you wanted me to repeat the third point. Okay, so NO is nursing officer post, जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल की पोस्ट है. यहाँ पे आपके पास या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए. ठीक है, विदाउट एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई इफ यू हैव डन बीएससी और पोस्ट बीएससी, बट इफ यू हैव डन जीएनएम you should have minimum 2 years of experience, right? Only then you can apply. Okay, now let's move to the next slide. Yes, here is the complete breakout of how much vacancies every post is carrying. So for AIDS educator cum counselor, here you can see the complete breakout that for unreserved category there is only one post. So total one post is there only. That too for AIIMS New Delhi only. Okay. Then after that we have ANM. It is for ANM people. Then multi-purpose worker. Fourth one is for us, nursing officer female. It is for ESIC, and the vacancies are quite huge. That is for unreserved, there are 194 vacancies. For EWS, there are 46. OBC is having 121 vacancies. SC is 65 and ST is 34. So total 460 vacancies are there for ESIC. So students, this opportunity is very good. Okay, so apply for this after fulfilling your eligibility criteria. Then after this, we have nursing officer for male, ESIC. So here you can see for unreserved male, there are 48 vacancies. For EWS, there are total 12 vacancies. For OBC, there are total 29. SC is having 16 and ST is 8. So total 113 vacancies are there for boys. Okay, then after this, we have nursing officer female post in Regional Institute of Medical Sciences, Imphal. Total vacancies here are 13, unreserved 7, and other breakout you can see here. Then after this, on the 7th number, we have nursing officer male vacancy again in the Regional Institute of Medical Science, Imphal. There total we have 3 vacancies for males only, right? And after this, in the last, we have public health nurse. पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट हमारी एम्स ऋषिकेश की थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यहाँ पे टोटल वैकेंसी हमारी अनरिजर्व की सिर्फ 1 है. ठीक है, yes dear, you will get this complete notification in the AIIMS website. आप वहां से एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार ये पूरा चार्ट गो थ्रू करना.
ठीक है, अभी लास्ट में एक बार आपको दोबारा स्लाइड दिखा के I'll show you guys कि कहाँ पे कौन सा कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. ठीक है, लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस as we have very time bound process. So okay, then after this let's move towards the senior post, that is senior nursing officer post. For senior nursing officer female post, it is for AIMS Jammu. So total vacancies for SNO female is 15, SNO male AIMS Jammu is total 6, and SNO male AIMS Nagpur is having 12, SNO female AIMS Nagpur is having 46. Yes, यहाँ पे फीमेल्स के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट होता है, थोड़ी वैकेंसी ज्यादा होती हैं, बट बॉयज डोंट फॉरगेट कि फीमेल्स के अंदर कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि फीमेल्स का नंबर ज्यादा होता है. ठीक है, सो कभी ऐसा निग्लेक्टेड फील मत करना कि एम्स भी 80-20 देता है, नॉर्सेट भी 80-20 देता है, यहाँ पे भी रेशियो डिवाइडेड है. ठीक है, डोंट एवर थिंक लाइक दैट. जितनी ज्यादा पोस्ट है उतना कंपटीशन ज्यादा है, उतने बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं. ठीक है, देन आफ्टर दिस वी हैव SNO मेल एम्स पटना, टोटल 8 वैकेंसीज, SNO female, total 31 vacancies in Patna only. Then SNO male, AIMS Rai Bareilly, we have 9 vacancies. SNO female, AIMS Rai Bareilly, we have 40 vacancies. ठीक है, here you can see the complete breakout. I am not going to what I can say, I'm not going to tell you each and every point here because it is very much clear from the slide only. You all can see the slide now. Is it visible to you Yes. all? Yes. Yes, ma'am. Thank you. Now let's move to the next slide, please. So, and if you have any query, any doubt related to this vacancy, you guys can approach us. Or if doubt is like something which cannot be clarified by our side, okay, so in that case you guys can contact directly to AIMS. So this is the this is their help toll free number, helpline number, where you guys can call, and the timings are mentioned here. So timing call timing should be only 10 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday, and on Saturday if you want to call, you have query, you can call them at 10 a.m. to 1 p.m. right? So now you guys can come forward and ask me the queries related to this vacancy or any other thing you wanted to ask. Yes, ma'am. One thing I want to add, Vishali ma'am. If it is okay for you, then can I stop sharing the screen, and to make this session interactive, let's get the switch on of the students. The cameras should be switched on, right? Yes, sure. Okay, thank you so much. Okay, students, I really request to all of you, please switch on your cameras to get this session interactive. Thank you so much, Priyanka. Thank you, Somdata. Rest everyone, quick, please fast switch on your cameras. There are 35 students in this session. Quick, students, please. Then we will resume the query question and answer round. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. Vishali ma'am, you can go ahead. Yes, now students, you guys can come forward and ask me the queries. मैम एक F1 में नोट्स अपलोड नहीं किए हुए थे 6, 7 एंड 8 क्लास के, 3 क्लास के सबीना मैम के. Sorry, can you please repeat? मुझे सुनाई नहीं दिया. नर्सिंग फाउंडेशन के सबीना मैम के 3 क्लास के नोट्स अपलोड नहीं किए हुए थे NNL क्लासरूम में मैम. नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं. FOM हाँ, day PDF 6, अपलोड नहीं 7, हुई. day 6, 7 and 8 के जो notes हैं that are pending, and according to my discussion with Nitish sir, that will be uploaded soon. There is some issue with the notes, that's why it is getting delay. थैंक यू मैम. Any other queries, students? Please ask your queries.
CRE के लिए टेस्ट लाइए। CRE के लिए होपफुली वी विल बी गिविंग यू सम टेस्ट. Sabina ma'am will be coming very soon with you guys so that she will tell you, she will give you some good news about CRE only. Okay, so wait till that time. ESC के लिए एक्सपीरियंस चाहिए. Yes dear, एक्सपीरियंस चाहिए if you have done GNM. Ma'am, any update regarding Dr. Marwa sir की class? As of now, dear, as of now, the class is over. Most of the topics related to our NORCET exam has been covered, but still, if you have some requirement or anything you want to add that you feel that is not completed in the live classes, so you can, yes, for that you can refer the videos. Okay, because as it was already mentioned in our TOC also that 80% theory will be covered here and 20% rest you have to cover by HYT videos only, HLT videos, right? Exam pattern similar to NORCET or difficult? Okay. सो यस वी कैन से कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम आता है नॉर्सेट का उस लेवल का हमारा सीआरई का एग्जाम होगा. ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एडवांस लेवल क्वेश्चंस होंगे, बट जो हमारा लेवल होगा प्रीलिम्स काइंड ऑफ लेवल होगा. ठीक है ईशा मैम, डियर, सब वैकेंसीज. स्किल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें हम? स्किल टेस्ट के लिए you just connect with me one on one for this. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Shelja ma'am, can you please connect her with me one on one? Sure, students, you can connect with Vishali ma'am, but for that, as I already told you, you have to fill the Google form, which I have shared with you on your personal window on WhatsApp. Please fill out that form so that I can schedule your meeting with ma'am. Yes ma'am. Okay, I was resolving the query of Isha. Actually, Isha is asking, ma'am, BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस चाहिए. ये जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, हर स्टेट ने, हर एम्स ने अलग तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, जो मैंने आपको एक ब्रीफ फॉर्म में एक्सप्लेन किया आज. ठीक है, सो पहले आप चेक करो कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन सी स्टेट में अप्लाई करना है. उसका आपको नोटिफिकेशन में रेफर करना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन यू फिल आउट द फॉर्म. ठीक है, क्योंकि सबका अलग है. ठीक है मैम, एनओ की पोस्ट के लिए इसमें ESIC में स्किल टेस्ट कंपलसरी है क्या? डियर, स्किल टेस्ट एज ऑफ नाउ जो हमारा नोटिस आया है इसके अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, बट एम्स हैव द कंप्लीट राइट. अगर वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं तो वो पहले प्रायर एक इंफॉर्मेशन दे देगी. ठीक है, बट अभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि स्किल टेस्ट होगा. ओके मैम. मैम, जितनी भी पोस्ट है ना, जैसे कि एड्स वाला हो गया, SNO का, NO का, तो सबके लिए मतलब कि मैंडेटरी है ना ये स्किल टेस्ट? यस डियर, यस मैंडेटरी है. There is a query from Sameer Ahmed, that is, ma'am, but MSN is major subject. It was supposed to be live. So Sameer, मेडिसिन की सारी क्लासेस लाइव हुई हैं. एज वैशाली मैम ने भी अभी आपको बताया कि 80% कंटेंट वी आर गोइंग टू कवर इन द लाइव पार्ट and 20% you have to cover from the annual one from your plan C+. And as I connected with you all, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में रीचेक भी कराया है. दैट इज कि ऑल द टॉपिक्स आर मेजरली कवर्ड इन द एनएल 1. अगर कुछ रह भी गया है तो वो आपका एनएल 1 में उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. यू कैन रेफर दैट फॉर द मेडिसिन पार्ट. अदरवाइज जितने भी आपके नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, दैट ऑल आर कवर्ड इन द लाइव पार्ट. आई थिंक आई एम आई राइट वैशाली मैम? यस करेक्ट.
मैम बट जीआईटी और नेफ्रो वाला जो यूनिट है वो जरा भी टच नहीं हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे कि रीनल फेलियर वगैरह वाले जो टॉपिक्स हैं। Only the renal system वाला part is pending. Rest बाकी जो topics हैं, because I have checked with Ritika and other students also from your batch only. Only 2 to 3 minor topics are pending. Rest all the content is available in the NL1 app. Firstly, please switch on your camera, students. It is a request to you all. Thank you so much. हेलो मैम। मैम एक डाउट है। हाँ जी, बताओ। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे फॉर्म फिल करते हैं ना तो वहाँ पे ना क्वालिफिकेशन में वहाँ पे परसेंटेज पूछते हैं, तो मैम कॉलेज की ओवरऑल चारों साल की मिला के फिल करनी है या फिर सिंगल सिंगल करनी है? वहाँ पे कुछ ऐसे लिखा नहीं हुआ तो कंफ्यूजन हो रही है। वहां पे 4th ईयर की करनी है डियर। ओके मैम। और मैम जो अगर आपको डिग्री मिल गई है तो आपको डिग्री में या तो परसेंटेज ओवरऑल मेंशन होगी, अगर नहीं है तो यू कैन फिल योर 4th ईयर्स परसेंटेज देयर। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। एनी मोर क्वेरी स्टूडेंट्स? मैम जो ये नॉन नर्सिंग का पार्ट है वो कब, मतलब आप लोग कब कवर करेंगे? वेरी सून, बहुत जल्दी होने वाला है, अभी जनवरी में। क्योंकि मैम आरआरबी के भी तो एग्जाम नियर बाई है, और जो एएसआईसी वाला है उसमें भी तो मैम नॉन नर्सिंग का आएगी मतलब नॉन नर्सिंग, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस आने वाली हैं, अभी जनवरी में ही है प्लान। ठीक है, और इसके लिए आपको एक नोटिस शेयर हो जाएगा बहुत जल्दी। इसके लिए ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है और प्लानिंग ये चल मैम रही है। जैसे कि अब मॉर्निंग में हमारा टैट होता है तो एटलीस्ट 1 आवर का मतलब हमें हर रोज मतलब आज मतलब जैसे जैन से स्टार्ट मतलब एक दिन में मतलब 1 घंटे का ही मतलब अगर नॉन नर्सिंग का भी पार्ट मिल जाता तो काफी हेल्पफुल होता है मतलब क्लासेस आई के लिए। अग्री विद योर पॉइंट डियर, आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि नर्सिंग में तो कमांड बना लेते हैं हम थ्योरी को रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की, बट नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है जो हमारा एक टच से दूर रहता है। ठीक है, सो आई अग्री विद योर पॉइंट, और इसी के लिए आई एम टेलिंग यू कि यहाँ कंप्लीट एक प्लानिंग, एक हमारा स्केड्यूल बन रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है, वो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाएगा और जनवरी में होपफुली हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ओके मैम। होपफुली। ठीक है, मैम एनी मोर मैम क्वेरी वन स्टूडेंट? क्वेरी। हम्म मैम ये मैं ये पूछ रहा था, जैसे मोस्टली जैसे सारे सब्जेक्ट एक सा लगता है, लेकिन फिर भी कौन सा मेजर सब्जेक्ट जो अभी रह गया है जिनकी क्लासेस अपने बाकी है, यहाँ क्योंकि लाइव कुछ इस क्लास, तरह। यू आर हाँ आस्किंग मैम। अबाउट लाइव क्लासेस? यस मैम, यस मैम। Dear, almost all major subjects are covered except CHN. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग छोड़ के ऑलमोस्ट सब कवर हो गए हैं। ठीक है, यस मैम। हमारे लिए अब मैटर ये नहीं करता कि हमें कंटेंट बाहर से क्या मिल रहा है, हमारे लिए मैटर अब हाँ। ये करता है कि जो क्लास के बाद का टाइम है हम उसको कितना प्रोडक्टिव बना रहे हैं। यस, यस है मैम, ना? उसी के अरेंज के लिए पूछ रहा था। उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू मेक अ टाइम टेबल जिसमें आप अपने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट आपकी लाइव क्लास है, सेकेंड पार्ट के अंदर आप अपनी थ्योरी की रिवीजन रखोगे 2 to 3 आवर्स की, एंड इन द थर्ड पार्ट आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इस तरह से अपने पूरे दिन को स्केड्यूल करो और डेली की टारगेट सेट करने हैं, खुद को टारगेट देने हैं कि आज मैंने अपनी थ्योरी का ये वाला पार्ट रिवाइज करके कंप्लीट करना है, और रिवाइज करते ही उसको टिक करो। रिवाइज कर लिया, थ्योरी आपने पढ़ ली, उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेना है, 7 to 10 मिनट्स का, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में जो आपने theory पढ़ी, उसी के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मिनिमम 50 है, मिनिमम 50। ठीक है, यस मैम। और इस टाइम पे अगर आपकी थ्योरी कवर हो चुकी है ऑलमोस्ट 50 to 70%, अपनी थ्योरी को अब इस लेवल पे रखना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस इस लेवल पे होने चाहिए, अगर आपका यस मैम। नॉर्थ टारगेट एज है। ठीक है, मैम जैसे मोस्टली क्लासेस जैसे सीएचएन बाकी है, सर्जरी चल रहा है, तो ये होने के बाद हमारे क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा कम होगा। क्लास का स्केड्यूल थोड़ा कम होगा, ये पूछ रहे हो आप? हाँ, जैसे अभी 6-7 आवर्स का चल रहा है, कभी 8। अगर क्लास का That's स्केड्यूल true. कम हो अभी जाएगा तो तो
क्या सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे आप इस ये टाइम बताओ। पे तो क्लासेस की डिमांड आनी चाहिए थी। नहीं मैम, आनी तो चाहिए थी लेकिन वो आई अंडरस्टैंड कि अब सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा चाहिए बिकॉज एम्स का एग्जाम बहुत पास है। होता है स्टूडेंट्स में यस। एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है इस टाइम पे कि पता नहीं हम कवर कर पाएंगे या नहीं। अपनी थ्योरी के ऊपर, अपने रिवीजन के ऊपर भरोसा रखना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, शक नहीं करना यस। खुद पे, और इसको यस बीच मैम। बीच में रेस्ट देना है। 5 मिनट 10 मिनट इसको रेस्ट दोगे तभी ये चलेगा। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ट्राई टू कनेक्ट विद मी वन ऑन वन ऑल्सो, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग एक पूरा शेड्यूल बना के गाइड कर सकूं। ठीक है। यस Hello, मैम। ma'am. I यस। wanted to ask you something like if I apply in RIMS, like the exam center will be there in Manipur only, Imphal. For if you are going to apply for rims, it depends on them only. If Oh, they okay. will give you a city preference, then you can select city preference. In the number one, you can select your Manipur only. If you Mm. they are not giving any city preference, then it depends on them only. So Oh, you okay. can't say them that give me Manipur only as my Oh, exam center. Okay. yes, ma'am. Ma'am, I can enter the website now, ma'am, the one which they've given in RIMS. Yes, yes, of course. You have to apply on the same website. Thank you, ma'am. Most welcome. Shall we bind up the session now? मैम थैंक यू मैम। जो NNL1 ऐप में जो वीडियोस है ना वो कंप्लीट भी नहीं है, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल की भी एक ही वीडियो उसमें है अपलोडेड, और रीनल वाले पार्ट में भी रीनल फेलियर वगैरह वाली वीडियो जो है वो अपलोड नहीं है, तो आप वो अपलोड कर दो तो हम वहां से कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस फिर। ठीक है, एक काम करो स्टूडेंट्स, देखो मैं पहले भी आप लोगों को यही बोलती हूँ, अगेन आई एम आस्किंग। सो स्टूडेंट्स प्लीज देखो, अगर आप लोगों को कोई लग रहा है दैट इज कोई पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज नॉट अवेलेबल इन द NNL1 ऐप, प्लीज शेयर दैट टॉपिक विद मी। जो जो टॉपिक्स आप मेरे साथ शेयर करते हो दैट आई डिस्कस विद द टीम, दैट्स वाई मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाती हूँ। सो प्लीज शेयर अगर आप लोगों का कोई भी पॉइंट है विच नीड्स टू बी एडेड, but that should be relevant and important according to the NORCET point of view. Apart from this, I want to ask, आप लोगों का कोई क्वेरी है? Rest anything pending? Students are again asking how they can connect with me one on one. I am just mentioning it again. I have shared the Google form with you all on your WhatsApp window. Please check your WhatsApp and I have shared the message. You have to fill out the Google form to connect with the Margdarshak, and then I'll schedule a session according to your preferred date and preferred time. थैंक यू मैम। Am I clear? यस मैम। Okay, thank you so much, Budharam. So students, apart from all these queries related to the CRE and notes and about from these medicine, please tell me if you are facing any general queries or any general issues if you are facing, so that we can work on it and we can get it resolved. कोई भी अगर issue आप face कर रहे हो? सौम्यता, यस मैम। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम। आप कैसे हैं मैम? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। बताइए, सब सही चल रहा है या फिर कोई इशू फेस कर रहे हो, और एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली? यस मैम, सही चल रहा है, बस थोड़ा सा टेंशन में हूँ मैम। अब तो टाइम आ रहा है इसलिए। थोड़ी टेंशन जरूरी है। मैम है। हेल्दी वे में एक थोड़ा सा प्रेशर होता है ना, एक थोड़ी सी एंजाइटी, हेल्दी एंजाइटी, वो जरूरी है इस टाइम पे, बट बहुत ज्यादा नहीं कर। ठीक है, क्योंकि वो हमें हमारे गोल से दूर करेगा। अगर हमारा माइंड नेगेटिव चीजों में फोकस करेगा तो हम पढ़ाई का टाइम कब मिलेगा हमारे माइंड को, है ना। सो थोड़ा एंजाइटी होना इज गुड, थोड़ा फियर होना इज ऑल्सो गुड। वो फियर जगा के रखेगा, वो फियर कंफर्ट में नहीं जाने देगा। कंटिन्यूअसली हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते रहेंगे, ठीक है, बट उसको ज्यादा नहीं करना। ज्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो चीज हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे लगे बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, अब ब्रेन के अंदर नहीं जा रहा है, ब्रेक लो, बहुत छोटा सा, बहुत लंबा नहीं, छोटा सा। ठीक है, ब्रेक लेके दोबारा से अपने माइंड को रिफ्रेश करो और दोबारा स्टडी स्टार्ट करो। यस मैम। ठीक है, Any other queries, students? Please come up. We have our time-bound process. My screen is visible to everyone? यस मैम। Okay, great. Anything you want to add, Vishali ma'am? यस, अनंत इज आस्किंग, अब जो हाई यील्ड टॉपिक है उसमें कुछ टॉपिक अपने से करना है क्या? डियर, जो हाई यील्ड टॉपिक की लिस्ट है आप उसके बारे में पूछ रहे हो, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क योर क्वेरी. दिस इज द लास्ट क्वेरी वी आर गोइंग टू टेक. प्लीज कम फॉरवर्ड. ओके, सो यस, वैशाली मैम, वो क्या बोलते, रिसर्च का भी एक दिन की क्लास अभी रह गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाया था ना मैम से, तो मैम ने बोला था कि एक दिन क्लास को शेड्यूल कर लेंगे और बाकी का जो रह गया मे बी हाफ डे की रह गई है शायद क्लास, तो वो वाला कंप्लीट करवा देना उसका, नर्सिंग रिसर्च का. वेरी सून वी विल नोटिफाई यू कि वो क्लास कब होगी. ठीक है, ओके मैम. हाँ अनंत डियर, जो हाई यील्ड टॉपिक की लिस्ट शेयर हुई है उसमें जो टॉपिक्स हैं उसका मतलब यह है कि आपको उन टॉपिक्स को 100% कवर करना है, उन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉर्सर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, वो लिस्ट शेयर करने का पर्पस ये था कि आप एटलीस्ट उन टॉपिक्स को बहुत थॉरोली रिवाइज कर लो, लर्न कर लो. ठीक है, सो आई थिंक ऑल योर क्वेरीज आर रिजॉल्व्ड स्टूडेंट्स. Okay, so we will connect next week now, and जिनको भी one-on-one connect करना है, they can fill the form. And Shailja ma'am has already explained you guys very nicely. Okay, so till then, keep preparing for your NORCET exam, CRE exam, and RRB exam. All the very best. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम. Thank you so much, Vishali ma'am. So students, before ending the session, let's take a look of this quote, that is give it your all, because NORCET exam is very near and we have to give every single effort on this for our preparation. Okay, so give it your all. अच्छे से preparation करो, give your best, be motivated, be healthy. तो अच्छे से prepare करो, practice करो, revise करो. कहीं पर कुछ भी doubt लगता है, then connect with us. Okay, students? And again, be healthy because it's very cold out. So please take a cup of tea or coffee, whatever you like. And thank you everyone for joining the session. Have a great day. Be healthy and end the session with your beautiful smile. Thank you everyone.